turns per centimeter of the thin wire is wound on a non-magnetic metal rod of length 1 meter and diameter 1 centimeter. टोरॉइडल रिंग है, एक टोरॉइडल शेप की रिंग है जिसका जो 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है ऑफ अ थिन वायर से, एंड इट इज wound on a non-magnetic material, ठीक है, non-magnetic metal rod of length of 1 meter, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर एंड डायमीटर कितना उसका 1 सेंटीमीटर। If the permeability of the bar is equal to of the free space, मतलब mu naught permeability, that is permeability of free space, mu naught is permeability of free space, ठीक है, और epsilon naught permittivity of free space, याद है ना, मैं दोनों चीजों बता दी थी तुम लोग को। epsilon naught permittivity of free space that is utilized in the electric field, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये क्या चीज है हमारी mu naught, and mu naught is the permeability of free space, ये चीज होती है permeability of free space, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.8, याद है तुम लोग को, ठीक है। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि जो वैल्यू होती है हमारी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब दोनों को अगर हम लोग 1/√of mu naught और ये एप्सिलॉन नॉट को अगर लगा दे तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दिस इज 1/√of, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ mu naught की वैल्यू होती है दिस इज 4 pi into 10⁻⁻⁷, याद होगी तुम लोग को, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85, है ना, into 10⁻⁻7 -12, ठीक है। तो ये दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये निकल के आता है 3 × 10⁸। This is the relation between these terms. This is speed of light, that is 3 × 10⁸, और जो 1/√of this is 4 pi epsilon naught and mu naught, दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्पीड ऑफ लाइट कहलाता है। Here, हाँ, so this is a permeability of free space and this is a permittivity of free space. Permeability and permittivity. Permittivity is utilized for the electric field and permeability it is utilized for magnetic field. इसके लिए यूज होता है magnetic field। इसलिए ये magnetic field का मल्टीप्लिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, और यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये चीज निकल के आती है, ठीक है। ये रिलेशन अगर आपको ध्यान में रखना है तो अच्छी बात है, because this is the relation between permeability of free space and permittivity of free space. There is the calculation that is. Okay, चलिए सामने चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे टोरॉइडल रिंग, टोरॉइड है, so this is the mean of Ampere circuit law का application, and what is the equation for Ampere circuit law? So this is a line integral, याद होगी तो this is a B dot dl, है ना, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले, this is a mu naught I net, याद है ना, mu naught I net. So this is a equation for Ampere circuit law. ये इक्वेशन आपकी एम्पियर सर्किट लॉ की, एंड देयर इज अ थर्ड एप्लीकेशन फॉर द एम्पियर सर्किट लॉ, दिस इज टोरॉइड। अब ये टोरॉइड का कांसेप्ट है। द टोरॉइडल रिंग हैविंग 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ द थिन वायर इज wound on a non-magnetic metallic rod of length 1 meter and diameter कितना इसका 1 सेंटीमीटर। यहां से आप गिवन तो खुद ही बना सकते हो। If the permeability of the bar is equal to the free space of mu naught, calculate the magnetic field inside. This is very important, magnetic field तो निकालनी है, but inside the bar निकालनी है हम लोग को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइडल रिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल रिंग इनसाइड द बार या इनसाइड द टोरॉइड, सो दिस इज B is nothing but your n into mu naught into I. This is the equation for magnetic field inside the magnetic bar, या बार के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनेगी उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा B is equals to n mu naught I. So where n is a number of turns per unit length, तो ये number of turns per unit length होता है। So this is n is a number of turns per unit length. तो हमारे पास में this is your magnetic field, तो मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊं तो number of turns per unit length कितना दिया है मेरे पास में 100 turns per centimeter है, ये 100 turns per centimeter, but turns per क्या चाहिए मेरे को, मीटर, turns per, तुम लोग अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लो। सो n/l इज इक्वल टू आ गया, दिस इज 100 एंड दिस इज 1 into 10 to the power 4 टर्न्स पर मीटर। तुम लोग को नहीं समझा, दिस इज टर्न्स पर सेंटीमीटर है, आई एम कन्वर्टिंग इनटू द टर्न्स पर मीटर, सो दिस इज 1 into 10 to the power 4, क्लियर। उसके बाद में लेंथ दी है, तो दिस इज l, अगेन l इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। उसके बाद में डायमीटर दिए कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 into 10 to the power -2 मीटर, ठीक है, रेडियस होगी इसकी। If the permeability of the bar is equal to the free space of mu naught, calculate the magnitude of magnetic field inside the bar. Magnetic field inside the bar, or that is a formula for magnetic field inside the bar of toroidal ring.
नॉट इंटू आई। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ से। हाँ करंट दिया है कि हमारे पास में फिर से, हाँ चलिए सामने देखते हैं। व्हेन द करंट इन सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न इज 1 एम्पियर, करंट कितना दिया है 1 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू कितना है मेरे पास में, सो 1 एम्पियर करंट दिया हुआ है यहाँ से। ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस को बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग पहले बी निकाल लेते हैं। सो बी इक्वेशन फॉर द बी इज इक्वल टू दिस इज n अपॉन l, सो दिस इज 1 into 10 to the power 4 multiplied by mu naught, this is 4 pi into 10 to the power minus 7 multiplied by 1, तो ये हो गया 10 to the power minus 3 और 4 pi 12.56, उतना ही होगा ना। सो b is equal to how much, कितना आ गया, ये 4, ये -3, इस -7 तो -3 हो गया, ये 4 पाई, ये 1 तो और वो 1 तो 1 ही हो गया, दिस 4 पाई 12.56 into 10 to the power -3, तो ये b है, b का यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, ठीक है। अच्छा ये -3 लिखा हुआ है यहाँ से, मिली टेस्ला, सो b is equal to how much, 12.56 मिली टेस्ला। चलिए क्या b समझ में आ गया सबको, अरे b समझ में आ गया क्या, हाँ। अब ये b का कैलकुलेशन हो गया है, अब फिर से और एक चीज कैलकुलेट करनी है हम लोग को, ठीक है। इसलिए पहले बोला मैंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल तो यहाँ तक तो वैसे कोई कंसेप्ट लगाना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग को आंसर नहीं आता। कंसेप्ट अब लगेगा जब मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग कहानी चालू करते हैं यहाँ से। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सबसे पहले, हाँ, ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ द कॉइल। मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस किसका निकालना है, कॉइल का। अब अच्छे से देखेंगे तो कॉइल इज वाउंडिंग ऑन द नॉन मैग्नेटिक मेटल रॉड, दिस इज द कॉइल, जो कॉइल नॉन मैग्नेटिक मेटालिक रॉड के ऊपर वाउंड है, उसके लिए मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक फ्रेम बननी चाहिए, जो फ्रेम कुछ आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ कंसीडर दिस इज योर टोरॉइडल शेप, ये ऐसे, और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, सो दिस इज योर नंबर ऑफ, दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है। ये कॉइल के लिए मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ये कॉइल के लिए मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर दिस कॉइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, दिस इज टोरॉइडल रिंग, दिस इज कांसेप्ट इज कॉल्ड एज दिस कॉल्ड एज टोरॉइडल रिंग, और फिर उसके बाद में ये सारी चीजें, या इनर डायमीटर नहीं दिया हुआ तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हां, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस किसका निकालना है, कॉइल का निकालना है, ठीक है। चलिए सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का निकालने के लिए सबसे पहले बात, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बनेगा, क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट करते हैं हम लोग phi is equals to what, phi is equals to b into a, ये phi का इक्वेशन क्या होता है, b into a। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए phi क्या हो जाएगा, nba, तो क्या होगा nba, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए अपॉन l हो जाएगा, सो n अपॉन l b into a, ठीक है। मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लोगों को ये लग रहा था कि क्लास 12 बजे की थी, ये तुम्हारी गलती है ना, शेड्यूल बिल्कुल फिक्स डाला हुआ था 11 बजे का। हाँ चलिए सामने चलिए, इधर ध्यान दो। सो अगेन दिस इज phi is equals to n upon l, this is b into a, but this b is what, magnetic field, and what is the equation for magnetic field, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, ठीक है। so what is the equation for magnetic field, n upon, so यहां आ गया n upon l, फिर से n upon l, और यहां आ गया mu naught, क्लियर हो गया अगर, और मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अच्छा अब एक ऐसे निकालेंगे, मेरे पास में रेडियस भी है, डायमीटर भी है, रेडियस तो पाई r स्क्वायर, ठीक है, वो बाद में यूटिलाइज करेंगे। क्या पता यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब फिर से सामने चलते हैं। सो नाउ सी अगेन दिस इज phi is equals to, दिस इज n upon l का होल स्क्वायर, अरे ऐसे होगा ना यार। सो दिस इज mu naught I into a, कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या। सो दिस इज व्हाट फ्लक्स, ये क्या है, अगर मैं यहां से ये मत बनाऊं तो d phi by dt, क्या बोलेंगे इसको, d phi by, so E is equals to what, d phi by dt। अच्छा अकॉर्डिंग टू Faraday's second law of electromagnetic induction, ठीक है। so E is equals to d phi by dt, and phi का इक्वेशन है, ठीक है। मैं यहाँ phi का इक्वेशन पुट कर देता हूं, देख अच्छे से। तो E is equals to अगेन d upon dt, जैसे कि वैसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। so this is n upon l का होल स्क्वायर, see this is mu naught I into a, इक्वेशन समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहां से जो डिफरेंशिएशन है, जो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, तो इक्वेशन बनेगा तेरा E का, जल्दी कि यहां से, सो E becomes E is equals to n upon l का होल स्क्वायर बाहर आ गया,
म्यू नॉट बाहर आ गया, ए भी बाहर आ जाएगा, अब इसका एरिया थोड़ा बदलने वाला है, ठीक है। तो देख डी बाई डी टी हो जाएगा, अरे होगा क्या, डी बाई डी टी। सो ये हमने इक्वेशन किसकी बनाया, ईएमएफ की। इक्वेशन किसकी बनाई ये, ईएमएफ की। तो मान लेता हूं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलिए मेरे को इक्वेशन किसका बनाना है, सेल्फ इंडक्टेंस। इक्वेशन किसका बनाना है रे, सो व्हाट इज इक्वेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, E is equals to L di by dt। अभी ये इक्वेशन है ना, अगर मैं मैग्नेट फॉर्म में लूं तो इसको, सो E is minus L by dt, L di by dt होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन है ये आपके लिए। सो E is equals to मैग्नेट फॉर्म में क्या L di by dt, तो ये EMF, ये दूसरा इक्वेशन, ये भी EMF और ये भी EMF है, क्या दोनों को कंपेयर कर लो, तो दोनों कंपेयर करने के बाद में देख L di by dt is equals to, देख अच्छे से, n अपॉन l का होल स्क्वायर अगेन म्यू नॉट कहां गया, हाँ म्यू नॉट a di बाय, अरे क्लियर है क्या, देख di बाय dt कैंसिल, अच्छा देख l इज इक्वल्स टू n अपॉन l का होल स्क्वायर म्यू नॉट, क्लियर, di बाय dt कैंसिल हो गया ना। हाँ चलिए n अपॉन l है मेरे पास, अब n अपॉन l है ना, so see this is L is equals to n upon L कितना है, 1 into 10 to the power whole square 4 pi 10 to the power minus 7 area pi r square। अरे हुआ क्या, अरे pi r square हुआ ना, हाँ चलिए pi r square, क्योंकि मैंने यहाँ स्मॉल r लिया है तो मेरे को यहाँ भी स्मॉल r लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ फिर से L आ गया, this is 1 into 10 to the power 8 हो गया रे, अरे हुआ क्या, ठीक है। this is again 4 pi, this is pi into pi square, this is 4 pi square into r square। अच्छा मैं इसको 1/2 का स्क्वायर लिख लेता हूं, चलेगा क्या, इसलिए क्योंकि ये 4 हो जाएगा तो ये 4 के साथ में कैंसिल। ये तरीका क्यों किया मैंने, देख इधर, मैं ये 1/2 का स्क्वायर कर दूं तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये 4 है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बट 1/2 into 10 to the power कितना रे, -2 का स्क्वायर, ठीक है। कहां गया, हाँ 10 to the power -7 छोड़ दिया गया, चलिए देख इधर, सो L is equal to C, this is 1 into 10 to the power 8 है ना, into 4 pi square into 1/4 10 to the power -4 10 to the power minus, बे यार समझ में आ रहा है, देख इधर ये 4 गायब हो गया, ये बचा सिर्फ pi square। तो अच्छे से देख टर्म्स को, this 10 to the power 8 10 to the power -4 10 to the power -7, ये -11 और ये 8 के साथ में -3, कितना हुआ -3, पाई स्क्वायर का मतलब 9.87, चलिए आंसर ये आप 9.8 10 to the power कोई डाउट, चलिए ये क्या है, यूनिट क्या रहेगा, अबे क्या रहेगा, -3 का मतलब, सिंपल सी बात है। सो L कितना आ गया 9.87 मिली हेनरी, सो दिस इज योर आंसर। बोल समझा सभी को, अभी समझा क्या?